Okay, guys, the next set of reaction in the ketones after reduction reaction is oxidation. Okay, now the first oxidation reaction is oxidation to acid, which you have done in aldehyde and ketones. In alcohols, during oxidation of alcohol, if you remember, there are two kinds of oxidizing agent: mild oxidizing agent like PCC, PDC, and the strong oxidizing agent like KMNO4, K2Cr2O7 in acidic media, KMNO4 in acidic alkaline media, या ConCHNO3. Now, what is the reaction? If you remember that reaction, primary alcohol get oxidized to give aldehyde with same number of carbon atoms, and that aldehyde in turn gives you an acid with again same number of carbon atoms. ये हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स में देखा था. So वही aldehyde को if you oxidize, it will give you RCOOH, acid with same carbon. But when you oxidize ketone, the oxidation of the ketone depends upon Puff's rule, if you remember this rule, where the carbon goes to the smaller alkyl and you get an acid with less carbon atoms by using strong oxidizing agent. ये reaction हम लोग ने alcohols में देखा था, same वही reaction refer करना. अच्छा, the next set of oxidation reaction of aldehyde ketone is actually a distinguished test between aldehyde and ketone. That is, aldehyde has an active hydrogen attached to this carbon atom. This hydrogen is active in nature, which can be donated, but ketone does not have this active hydrogen. So because of this active hydrogen, remember, this aldehyde becomes a better reducing agent as compared to ketone, and it can reduce some of the oxidizing agent like Fehling solution, Tollens reagent, Benedict solution, Skiff reagents. ये सबको वो रिड्यूस कर सकता है या तो फिर खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है. मतलब these reagents or oxidizing agent, they will oxidize aldehyde only because of the presence of active hydrogen atom. The aldehyde is more reactive than ketone, but they cannot oxidize ketone. So मतलब if you get a mixture of aldehyde and ketone, use any of these solution, add this solution to the mixture or add this solution to the test tubes, जिसमें कलर चेंज होगा, जो रिएक्ट करेगा, that will be an aldehyde, and ketone will remain unreacted. So there will be no change in the color of the solution. Nothing will happen in ketone. Now first of all, इसमें सबसे पहला distinguished test जो है, that is oxidation by using Fehling solutions. What is Fehling solution? Fehling solution is actually a mixture of two solutions, Fehling solution A and B. Fehling solution A is aqueous USO for blue in color, B is Roche salt, that is nothing but sodium and potassium tartrate in NaOH. Tartaric acid है, उसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है NaOH में. दोनों को मिक्स करो, ऐड करो ऑर्गेनिक कंपाउंड में. अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड है, सो रेड कलर विल अपीयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड. So in Fehling solution, you have these components: copper hydroxide, NaOH, alkaline, aldehyde. The aldehyde will react with this Fehling solution and get oxidized. अगर aldehyde oxidize होगा तो वो क्या बनेगा? aldehyde oxidize होकर क्या बनता है? acid बनता है. So it will convert into an acid, but since sodium present है तो उससे react करके वो sodium salt of acid बना देगा. मतलब it result into the formation of RCOONA, oxidize हो गया, plus copper plus 2 से it becomes Cu2O plus 1 get reduced cuprous oxide जो reddish brown color है, plus you get 3 moles of H2O in this reaction. So इस reaction में ketone ऐड करोगे, वो कोई red appearance नहीं देगा, वो oxidize होगा ही नहीं, because these are mild oxidizing agent. Fehling solution is like PCC, PDC, बहुत उससे mild है, तो वो ketone को oxidize नहीं कर पाते because ketone doesn't have that active hydrogen to react. So Fehling solution, one of the tests is Fehling solution test. We get a red color with aldehyde. The aldehyde get oxidized. Okay. अब याद रखना, this test is positive by aliphatic aldehydes, but not by aromatic aldehydes. मतलब बेंजाल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता, कीटोन भी ये रिएक्शन नहीं देता, स्टेरिक फैक्टर की वजह से और रेजोनेंस के फैक्टर की वजह से वो नहीं देगा रिएक्शन. बट एलिफेटिक अल्डिहाइड जैसा फॉर्माल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड, प्रोपियोनॉल्डिहाइड, दे गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव. Then next, oxidation by Tollens reagent. Tollens reagent is also called as silver mirror test. Why? पहले बात, Tollens reagent क्या होता है? ये है Tollens reagent, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. ये एक कॉम्प्लेक्स होता है Tollens reagent, अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स. इसका नाम होता है, IUPAC नेम इज डायअमाइन 2 अमाइन सिल्वर
1 is a charge, +1 is a charge on silver and hydroxide. This is Tollens reagent, also called as ammonical silver nitrate solution. क्यों ये बनाते ही सिल्वर नाइट्रेट लेके कि सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिकल सोल्यूशन में डालो. अमोनिकल सोल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल. अमोनिया इन वाटर इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो व्हेन AgNO3 dissolve in ammonium hydroxide, this Ag converts into its oxide form, which reacts with more molecules of ammonium hydroxide and give this complex where Ag has a charge of +1. Therefore it is called as diamine silver 1 hydroxide. This is Tollens reagent. ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा, एज वेल एज C डबल बॉन्ड C को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, लाइक PCC, PDC, OpenR, कॉपर किया था हम लोगों ने ये. तो it will only oxidize aldehyde. So when you add this ammonical silver nitrate solution into aldehyde, the aldehyde converts into ammonium salt. Oxidize होगा, देखो एसिड बनेगा बट एसिड का सॉल्ट बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बन गया. प्लस Ag इज सेट फ्री, चार्ज 0 हो गया +1 से. सो ये डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के साइड पे, तो एक मिरर अपीयरेंस दिखता है. दैट इज वाई हम लोग ये Ag के डिपोजिशन के वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, बिकॉज सिल्वर मिरर जैसा अपीयरेंस दिखेगा Ag. प्लस यू गेट अ अमोनिया विच इज रिलीज प्लस H2O. सो यू गेट दिस ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एसिडिक सॉल्ट बेसिकली. मतलब अगर एसिड आल्डिहाइड लिया है तो यू गेट CH3COO एसिडिक फॉर्म माइनस NH4 प्लस अमोनियम एसिडेट, सॉल्ट बनेगा उसका, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया ना, एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था. प्लस यू गेट 2 moles of Ag which is deposited at the side of test tube which gives a silver mirror appearance, ammonia plus H2. अगर आपने कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया है तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा. किसकी तरह, लाइक PCC याद होगा, PDC, फिर हम लोग ने लिया था OpenR ऑक्सीडेशन. ये सब डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करते, दे आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. K2Cr2 and KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, तो आप इससे रिएक्ट करोगे, सो यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CH COO NH4 plus Ag's deposit silver mirror test. Okay, so this is silver mirror test. Saturated, unsaturated, aliphatic, aromatic, सारे aldehyde get oxidized by Tollens reagent. Okay, if little stronger than Fehling. Fehling से थोड़ा ज़्यादा strong होता है. Fehling के अंदर aliphatic aldehyde test देते हैं, but aromatic aldehyde test नहीं देते, जो मैंने बताया था यहाँ पर. This part they give the test but aromatic aldehyde and ketone नहीं देता. यहाँ पर aliphatic, aromatic सारे aldehydes इसको positive test देंगे, but ketone नहीं देगा. obviously there is a distinguished test between aldehyde and ketone. Now next, third reagent Skiff solution, and it is a colorless solution obtained by passing SO2 gas. This reagent basically obtained by passing SO2 gas in a chemical called as para-rosa aniline hydrochloride. ये structure textbook में दिया है. Remember this, para-rosa aniline hydrochloride, the molecule, the structure. You pass an SO2 gas in presence of water, it will convert into a Skiff reagent. Now this is a structure where it gets sulfonated at this position, resonance हो जाता है, and it get back the aromaticity. Ring की aromaticity यहाँ पर regain हो जाती है because of this resonance effect. Okay. Now ये reagent हम लोग जब aldehyde में add करेंगे ना, तो ये reagent actually colorless होता है. और ये जो para-rosa aniline hydrochloride है, this one basically it has a magenta color, a pink color. जब इसमें आप SO2 पास करते हो तो इसके फ्री एजेंट जो बनता है that is colorless. तो ये कलरलेस सोल्यूशन जब आप अल्डिहाइड में करोगे तो उसका पिंक कलर रिस्टोर हो जाएगा, मैजेंटा कलर वापस आ जाएगा. सो दैट इज द रीजन दिस इज यूज टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स को ये पिंक कलर अपीयर नहीं होता. और लास्ट टेस्ट जो है दैट इज ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सोल्यूशन. ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, फॉर JEE नीट. रिमेंबर इट्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ CuSO4 कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है, एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. ये दोनों को आप मिक्स करोगे CuSO4 में तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन मिलेगा. वो सोल्यूशन को हीट करते हो विद अल्डिहाइड, वो अल्डिहाइड में अगर ऐड कर दिया बेनेडिक्ट से हीटेड तो अगेन यू गेट अ रेडिश ब्राउन PPD. रेडिश ब्राउन PPD आपको कहाँ पर मिलता है? एक तो फेलिंग सोल्यूशन में मिलता है और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में मिलता है, याद रखने का. बट फेलिंग सोल्यूशन इज रोशले सॉल्ट एंड CuSO4. रोशले सॉल्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, और बेनेडिक्ट क्या है? सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट इज एडेड इन CuSO4. याद रखना दोनों का डिफरेंस क्या है.
बट दोनों में कलर वही मिलेगा, रेडिश ब्राउन पीपीडी. Okay, so these are the 4 tests, and these are 4 oxidizing agent basically which oxidize aldehyde but do not oxidize ketone. The next oxidation reaction is the haloform reaction. You have done this in chloroform. क्लोरोफॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म. आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर लिया था CaOCl2, वाटर में डाल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था और इथेनॉल लिया था. इथेनॉल फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है. ड्यूरियम में था रिएक्शन, इथेनॉल फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है और वो ऑक्सीडाइज होके इट कन्वर्ट्स इनटू अ अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड CH3CHO. फिर वो CH3CHO को हम लोग एक्सेस क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरल मिलता है, ट्राइक्लोरो एसिड अल्डिहाइड. फिर उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्ट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो हम लोगों को क्लोरोफॉर्म मिला था. तो मैंने वहाँ पर एक आपको शॉर्टकट सिखाया था कि क्लोरोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड कीटोन विच हैव CH3CO ग्रुप और दोज अल्कोहल विच हैव CH3CHOH ग्रुप, बिकॉज ये ग्रुप ज़रूरी है क्लोरल बनने के लिए. ये रिएक्शन वहाँ से आया है. अगर आपको याद होगा इस रिएक्शन के बारे में तो हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोगों ने इथेनॉल लिया था CH3CH2OH, उसको जब क्लोरीन से एज अ ऑक्सीडेशन में जाता है तो इट फॉर्म CH3CHO. फिर वो हम लोग एक्सेस क्लोरीनेशन करते हैं तो CCl3CHO बनता है और फिर इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लीचिंग पाउडर से मिलता है उससे करते हो तो ये पॉट ब्रेक होता है, यू गेट CHCl3. तो यही अल्डिहाइड है ना जिससे ये क्लोरल बनता है. फिर ये स्टेप है, तो वही रिएक्शन लेना हम लोगों को. अल्डिहाइड कीटोन ऐसा लेना जिसमें COCH3 हो, COCH3 हो. वही क्लोरीनेशन आप करोगे, क्लोरीनेशन करोगे तो ये जो अल्फा कार्बन CH3 है यहाँ से H निकल जाएगा एंड यू गेट 3X. सो मतलब 3HX, 3X और 3 हाइड्रोजन HX बन के निकल गए और 3X 6 है ना यहाँ पर, तो 3X जो बचे वो इधर आ जाएंगे. सो गेट C डबल बॉन्ड O अटैच टू C, X X and X and then you do hydrolysis. यहाँ पर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, NaOH से करोगे तो और ज़्यादा प्योर कंपाउंड मिलेगा. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है C एंड यू गेट व्हाट CHX3 क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म जो भी हैलोजन है, प्लस यू गेट RCOONH, सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड. और याद रखने का अल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए कंपलसरी, CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या तो उसमें क्या होना चाहिए अल्कोहल में CHOH ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH. तो ये आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा. ओके, सो रिमेंबर दिस के अल्डिहाइड कीटोन शुड हैव COCH3 ग्रुप. वरना ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. पहले स्टेप में हैलोजनेशन फिर हाइड्रोलिसिस. तो ये जो अल्फा कार्बन के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होना चाहिए टू फॉर्म अ क्लोरल टाइप कंपाउंड या हैलो ट्राई हैलो कंपाउंड. अच्छा, इसको शॉर्टकट में कैसा लिखेंगे, NaOH रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म NaOX. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइपोहलाइट. मैंने यहाँ नेम लिखा है सोडियम हाइपोहलाइट. अगर ये भी लिखा आया X2 लिखा आया तो ये बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो और सीधा ये CH3 के पार्ट से बना दो CHX3 प्लस RCOONA. ये शॉर्टकट रिएक्शन है. समटाइम MCQ में आपको ये NaOCl दे देगा. फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए ढूंढता हूँ ये रिएक्शन. देखो मैंने लिखा है यर सी दिस रिएक्शन फर्स्ट, NaOI आयोडीन. दिस मॉलिक्यूल इज गिवन. ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है. क्या करना है, ये अल्फा CH3 को देखो COCH3 है, ये निकाल दो यहाँ से. आयोडीन है तो आयोडीन विल फॉर्म CHI3 आयोडोफॉर्म येलो कलर, प्लस ये पार्ट O किससे जाएगा ONA के फॉर्म में, तो इट विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CHCOONA. डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज नहीं करते, ये भी माइल्डली है. ओके ये तो ऐसा लिखा आएगा. या तो फिर नॉर्मल फॉर्म में कि फर्स्ट स्टेप में NaOH एंड Cl2 डाला तो ये अल्फा कार्बन का CH3 किस में कन्वर्ट होगा CCl3CHO. दिस पार्ट CCl3CHO. देन यू ब्रेक इट hydrolysis, so you get CHCl3 plus HCOONA. ओके, एसिडोन लिया, फिर से एक पार्ट को हटा दो अल्फा वाला CH3. ब्रोमिनेशन देखो Br2 दिया है मतलब ये ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, मतलब ये CH3 का क्या बन जाएगा CHBr3 प्लस यू गेट CH3C डबल बॉन्ड ONA. इथेनॉल लिया तो इथेनॉल फर्स्ट गेट ऑक्सीडाइज. देखो इसमें CH3CHOH आ रहा है, ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CH3CH डबल बॉन्ड. आपको याद होगा प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू अल्डिहाइड.
फिर वही NaOCl मतलब शॉर्टकट दे दिया सीधा, हैलोफॉर्म रिएक्शन, बट क्लोरोफॉर्म बनाना, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर दो अल्फा, तो दिस एंटायर CH3 विल कन्वर्ट इनटू CHCl3 प्लस बचा क्या HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट। ओके, सी मॉलिक्यूल नंबर 5, इसके पास COCH3 ग्रुप नहीं है, नो हैलोफॉर्म, वाई, इट डज नॉट हैव COCH3 ग्रुप। बेंजाल्डिहाइड के पास में COCH3 है क्या, इधर नहीं है, तो इसके लिए भी नो हैलोफॉर्म, नहीं दे रहा है क्योंकि COCH3 ग्रुप नहीं है। अच्छा, ये अल्कोहल देगा, देखो इसके पास है, हाँ इसके पास देखो CH3CHOH ग्रुप है, मैंने बताया था अल्कोहल के पास क्या होना चाहिए, CH3CHOH ग्रुप है, इसके पास CH3COH, तो ये रिएक्शन देगा। फर्स्ट स्टेप में ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो इट विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, तो यू गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। नाउ कैन यू सी दिस अल्फा कार्बन, ये पूरा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। NaOCl मतलब क्लोरोफॉर्म, तो इसका सीधा CH3 क्या होगा, CHCl3 प्लस बचा क्या है CH3 CH2COONA, सोडियम सॉल्ट। ओके, सो हैलोफॉर्म रिएक्शन वापस से क्लोरोफॉर्म में मैंने किया था, वापस से वही रिपीट किया। इट इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड कीटोन विच हैव COCH3 group, या only by those alcohol which have CH3COH group. First step, halogenation of the alpha to form trihalo compound. सेकेंड स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस, ब्रेक इट, या तो वन स्टेप में करना है तो वन स्टेप में लिखो, सीधा अल्फा को ब्रेक करके 3 क्लोरीन 1H रहने दो, CHCl3 CHBr3, ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, द नेक्स्ट 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी हम लोगों ने हैलोफॉर्म रिएक्शन देखा, ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 KMnO4 अल्कोहल वाला कन्वर्ट्स इनटू एन एसिड। डिस्टिंग्विश टेस्ट देखे, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस के फ्री एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन, जहाँ पर अल्डिहाइड कलर चेंज दिखाता है, कीटोन नहीं दिखाता। द नेक्स्ट 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट देयर फॉर HSC, ओनली फॉर JE, नीट के लिए भी देख सकते हैं, JE के लिए है। बेयर-विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें कीटोन विल कन्वर्ट इनटू एन एस्टर, कीटोन गेट कन्वर्ट इनटू एन एस्टर, सिर्फ एक ऑक्सीजन आपको ऐड करना है उसके अंदर, दैट्स इट। सो कीटोन सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में, जैसे RCOR है, बट रिएजेंट क्या चाहिए, यू कैन टेक पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, पेरोक्सी मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, -1 वाले लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज, C6H5 C डबल बॉन्ड O OOH, तो ये O निकल सकता है ऐड होने के लिए ऑक्सीडेशन, या कैरोज एसिड्स H2SO5, ये भी पेरोक्सी एसिड है, ये भी एक ऑक्सीजन दे सकता है, या पेरोक्सी एसिडिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिडिक एसिड, 3 फ्लोरीन डाला CF3 के साथ में, तो ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिडिक एसिड, पेरोक्सी ग्रुप होना चाहिए, विच गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाके ऐड हो जाएगा ये बॉन्ड के बीच में, एंड यू गेट R C डबल बॉन्ड OR, बन गया एस्टर, सिंपल है। तो याद रखो, सिर्फ ये रिएजेंट से एस्टर बन सकते हैं, कीटोन से, बेयर-विलिगर रिएक्शन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड किया, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, रिंग आ गया, तो सर कौन सा ब्रेक होगा इसके अंदर, रिंग वाला ब्रेक कराओ, ऑक्सीजन को वहाँ ऐड करो, अल्काइल की तरफ नहीं। सो यू गेट O C डबल बॉन्ड O CH3, रेजोनेंस मिलेगा ना यहाँ पर ये लोन पेयर से, इसके लिए। ओके, देखो यहाँ पर ब्रेक कराना है, यहाँ पर क्या है CH2 ग्रुप, तो किसी एक को ब्रेक करा देंगे हम लोग एस्टर बनाने के लिए, तो यहाँ से वो ब्रेक करा दो, इसके बीच में आप ऑक्सीजन डाल दो, तो यू हैव ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O, ये अटैच हो जाएगा O अटैच टू दिस CH2 अटैच टू दिस CH2, यहाँ पर एक CH2 है, फिर एक CH2 है, अटैच हो गया, एस्टर बन गया, सिंपल रिएक्शन। देन ऑक्सीडेशन विद सिलीनियम डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड इज अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या करना है, अल्डिहाइड कीटोन्स विद रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, रिएक्टिव मिथाइल ग्रुप एंड रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप, अल्डिहाइड कीटोन्स विद रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप that is CH2 and methyl group that is CH3 attached to carbonyl carbon, ये कार्बन से अटैच हो गया अगर CH3 या CH2, तो वो ग्रुप C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोनिक में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब CH3 गेट ऑक्सीडाइज टू CHO एंड CH2 गेट ऑक्सीडाइज टू C डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल दिखाता हूँ,
सिंपल रिएक्शन है सेलेनियम डाइऑक्साइड का। देखो CH3CHO है, मतलब कार्बोनिल कार्बन के साथ में मिथाइल है, दिस इज एक्टिव मिथाइल। तो दिस एक्टिव मिथाइल विल कन्वर्ट इनटू CHO आफ्टर ऑक्सीडेशन, तो दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू CHO, हो गया कन्वर्ट। ऑलरेडी एक C डबल बॉन्ड O था H, ये क्या बन गया ग्लाइऑक्सिल, याद होगा एग्जाम्पल। बेंजीन का ओजोनोलिसिस में यू गेट इन एसिड, एसिडिलीन के ओजोनोलिसिस में यू गेट द प्रोडक्ट ग्लाइऑक्सिल। अच्छा सिमिलरली यार SeO2 सिलिनियम डाइऑक्साइड आ गया, दिस इज कीटोन। Now see properly, it has CH3 group here, active methyl attached to carbonyl as well as active methylene attached to carbonyl। इसको कुछ नहीं होगा, ये दोनों को जो एक्टिव कार्बोनिल से। तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू HC डबल बॉन्ड O, कन्वर्ट हो गया ये पार्ट। ऑलरेडी यू हैव C डबल बॉन्ड O, यू हैव CH2 CH3, ओके। नाउ व्हाट अबाउट दिस, कम ऑन, ये अगर ये ऑक्सीडाइज होगा सो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। शॉर्टकट याद रखने का, CH3 CHO में कन्वर्ट होता है, CH2 C डबल बॉन्ड O में। अब देखो ये एग्जाम्पल दिया है, दोनों जगह CH3 एक ही ग्रुप है, तो आई कैन कन्वर्ट एनी वन ऑफ देम, दोनों सेम है, C डबल बॉन्ड O CHO में कन्वर्ट हो गया। अच्छा फिर ये आ गया बराबर, देखो यू हैव CH2, दिस इज CH2 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 CH2, किसी भी एक CH2 को कर दो कन्वर्ट, तो ऑलरेडी ये डबल बॉन्ड O है, एक्टिव मिथिलीन यही है और यही है, तो ये भी CH2 ये भी CH2 दोनों सेम है, तो कन्वर्ट दिस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O। सो यू गेट अ डाई कीटोन बेसिकली सेलेनियम डाइऑक्साइड से, और बेयर विनेगर में पेरोक्सी से यू गेट अ कीटोन इनटू एस्टर। ये अल्डिहाइड कीटोन दोनों को आप कन्वर्ट कर सकते हो डाई कीटोन, ओनली द मिथिलीन एंड द मिथाइल ग्रुप शुड बी अटैच टू C डबल बॉन्ड O, उसके हिसाब से कन्वर्जन होगा। ओके, दिस टू रिएक्शंस आर फॉर JEE एंड NEET।